है मैं बहुत ही शरारती और एकदम दोस्त होना, बारिश में भीगना, पतंगे उड़ाना, यही मेरा पैशन था. There was not proper guidance and I just left it middle way. I started at a very base level as a calling agent, and with all my hard work and consistency, I was promoted senior executive, lead, then I was a trainer, then I was an assistant manager operations. I was handling a team of 20 people. It was nice. Maternity leave, I joined exactly on the 85th day. With the second child came more responsibilities. There was postpartum depression. It was not recognized by anyone. Whatever I was feeling, उनको लगता था वेग है, ड्रामा है. हाँ, मुझे suffocation feel हो रही थी. To run, my kids separated, which is like still I have that, मैं अंदर अभी भी मेरे अंदर वो चीज़ है उसको लेके. I was into depression, seeing a psychiatrist and things were not good. So my sister prompted me, why not try yoga? 15-20 दिन में मुझे ऐसे लगा कि यही है जो मैं करना चाहती हूँ. Because I was healing from inside. मैं TTC कर आई हूँ और they will give me teaching now. But there was no teaching. I was like disappointed. I received a call from the center कि आप 10 बजे वाली क्लास में आओगे असिस्टेंट्स के लिए. And it gave me so much confidence and I was so much grateful कि मैम मैं 37th वीक में जाके अपनी मैटरनिटी लीव अप्लाई करूंगी. It gives you more confidence. पहले बोला जाता था आप प्रेग्नेंट हैं, आप घर में बैठिए, आप थक के बैठिए, आपको बाहर नहीं जाना. पर अब वो सब it is like outdated. ऑनलाइन क्लास चल रही है and उसकी मदर ने मुझे डांटा और बोला कि आपको मालूम है आप क्या करा रहे हो मेरी बेटी को? Is it safe? आपको मालूम है? Then it was a normal delivery. हॉस्पिटल में खड़े होकर सबको बोल रही है. इतना आसान इसलिए हुआ क्योंकि ये प्रीनेटल योगा करती थी. डर को जीतना ही असली जीत है और मेरी आज की गेस्ट ने ये साबित किया है. शी लेफ्ट बिहाइंड अ सिक्योर कॉर्पोरेट करियर टू फॉलो अ कॉलिंग, एम्पावरिंग वुमेन थ्रू प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल योगा. आज हम बात करेंगे उनकी जर्नी की, उनके पैशन की. पार्वती ने 10,000 से ज्यादा लेडीज को उनके प्री और पोस्टनेटल डिलीवरी में हेल्प किया है एंड शी कंटिन्यूज डूइंग इट. तो जानते हैं पार्वती से उनकी जर्नी के बारे में और पोस्टनेटल प्रीनेटल योगा के बारे में डिटेल में. वेलकम टू बिहाइंड द हसल पार्वती. Thank you. सो चलो स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं. ठीक है. टेल अस समथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड, योर एस्पिरेशंस फ्रॉम लाइफ. So I am the second last among the 5 siblings, and so 3 elder sisters. Sisters तो थी बड़ी, but इतना सीखा नहीं उनसे जितना सीखना चाहिए था. However, the second sister, she inspired me a lot, and for my career, even for my yoga, she was the one who explained me, and she was the one who inspired me to join yoga. Okay. So, and as I remember my childhood, मुझे लगता है मैं बहुत ही शरारती और एकदम टॉमबॉयश थी. और गलियों में खेलना, लड़के दोस्त होना, बारिश में भीगना, पतंगे उड़ाना, यही मेरा पैशन था. तो फादर मेरे को डांटते थे, बोलते थे कि कभी लड़की कोई सहेली बना लो, कभी कुछ ऐसा काम कर लो. बट मेरा बैंड कुछ और ही था. So what exactly was your plan with life? कुछ No plan. It Hmm. was just, yeah, random. I had no plans. I wanted to study more about the human structure, the bones, the muscles, कैसे हमारी body behave करती है, like how is it emotionally connected, how are emotions connected to the physical body, क्या changes आते हैं और क्या होता है emotion जब हम emotional feel करते हैं, whether it is joy, it is grief, and how long does it stay in our body. So I had a really very strange inclination towards it. So did that lead to you studying psychology? Yes, of course. So I wanted to study behavior. Then I moved after the school. I did my psychology honors, and उसके बाद मैंने एक PR में 1 साल का डिप्लोमा किया. Although I cleared my MA psychology entrance exam. I did my first semester, and then again there was not proper guidance and I just left it middle way. Right. Now I sometimes think that मुझे complete करना चाहिए था, but life is what it is. Correct. Accept. Then what happened after that, after your degree?
degree, and then I started working, corporate job. I got married. I was just 23 when I got married. Okay. Too early, but I think उस टाइम इतनी समझ भी नहीं होती, और you are in that fairy tale times when you think that everything is at its best, but it is not actually. So I realized it like very soon, and at 29 I had my eldest son, and it was a normal delivery, very inspiring. And after 5 years, I had my second son. So 34 was the 33 was the second pregnancy, and I delivered him in 34. अच्छी जर्नी रही है. So far, so good. I have no regrets for anything. Life has been kind to me. How about your corporate career? Were you working after marriage also? Oh, absolutely. So I was working for a BPO, and I started at a very base level as a calling agent. And with all my hard work and consistency, I was promoted senior executive, lead. Then I was a trainer. Then I was an assistant manager operations. I was handling a team of 20 people. It was nice. However, but there was a certain gap. Like आई वॉज मिसिंग नेचर. मुझे लगता था कि कहीं ब्रेक हो, मैं सुबह ऑफिस जाने के बजाय मैं घास पे चलूं, मैं पेड़ों के नीचे बैठूं. आई कैन कनेक्ट मोर विद मदर नेचर. आई वॉज मिसिंग दैट पार्ट. सो या. Was it because BPO में जब आप काम करते हो कॉल सेंटर में, it's always shift duty. Yes. Was it difficult to manage with 2 kids? When the second one was born, I उससे पहले मैंने जॉब छोड़ दिया था. बट जब बड़ा बेटा था तब मैं कर रही थी, एंड इट वाज रियली टफ. So I joined my job after even the maternity leave. I joined exactly on the 85th day. Okay. And certain people were very kind to me, like my boss. He understood that what I was going through. उसने बोला अच्छा आप थोड़ा जल्दी चले जाना घर, आप मैनेज करो. So weekends off थे, तो कहीं ना कहीं वहाँ हेल्प मिल रही थी. तो मुझे लगता है कि जैसे यूनिवर्स है तो आपकी एनर्जीज को वो इंक्लाइन करते हैं, एंड you see what is happening around you. So then what changed? What changed? So, with the second child came more responsibilities, and there was postpartum depression, but it was not recognized by anyone. Whatever I was feeling, उनको लगता था वेग है, ड्रामा है, और अब तो हो गए 7 महीने, 8 महीने, अब तो काम करना ही पड़ेगा आपको, या आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ेंगी. तो आई वॉज रेडी फॉर इट. आई वॉज टेकिंग. हाउ एवर वो गैप था, मुझे सफोकेशन फील हो रही थी. आई वॉन्टेड टू रन, आई वॉन्टेड टू गो टू द पार्क, अगेन सिट अंडर द सन. आई वॉन्टेड टू डू ऑल दीज थिंग्स, बट बहुत सारी जिम्मेदारी साथ में आ रही थी, जो कि मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रही थी. वो सब तो हो रहा था, जिसको जो चाहिए सब कर पा रही थी, पर अपने लिए वो टाइम नहीं निकाल पा रही थी, जिसका मुझे अंदर अंदर घुटन हो रही थी कि मैं ये क्यों नहीं कर पा रही अपने लिए. तो वन फाइनल डे ब्लास्ट हुआ और सब चूर चूर हो गया वहां पर. तो so again, the not so good part about it is my kids separated, which is like still I have that, अंदर अभी भी मेरे अंदर वो चीज है उसको लेके. I'm sure. और फिर उस टाइम जॉब भी छोड़ चुकी थी. There was no source of income. My father had a house, so I moved to that house staying with my younger child. कैसे मैनेज होगा, कैसे होगा सब. तो भगवान है, कृपा रहती है, आपको विश्वास रखना है. Everything happens for a reason. So there's one of my friends who prompted me, and yeah, difficult times थे वो, काफी difficult. तो उसने मुझे prompt किया कि हाँ, there is something that is for me, and he said morning में call this person and she's going to help you. So I was fortunate, and I got this job of an interpreter in the Canadian High Commission. It was an outsourced job. However, they were paying very well, which actually helped. मेहनत से डरना नहीं है. तो वहाँ गई मैं, बात करी, और with all my corporate experience, and also I worked with the High Commission earlier also. So I had some knowledge about it, and I knew the protocols.
So it was easy for me to follow. And अगर आप अच्छे से ध्यान से सच्चाई से सारा काम करते हैं, मुझे लगता है आपको भगवान भी देख रहे हैं और आपको वो वापस मिलता है उसका. So ma'am was very kind enough, and she started supporting me. She knew what I was going through. उन्होंने बहुत सपोर्ट किया जयश्री मैम ने. तो वहाँ से साइड बाय साइड आई side by side, yes. So I spoke with my sister and I told her ki I have done my walking part. I was into depression, seeing a psychiatrist, and things were not good. So my sister prompted me, ठीक है, अब walk कर लिया तो अब next why not try yoga? So वहीं से शिवानंदा जर्नी स्टार्ट हुई मेरी, और I started as a practitioner. It was just so beautiful. 2 महीने में मुझे ऐसे, 2 महीने भी बहुत ज़्यादा बता रही हूँ, आई थिंक 15-20 दिन में मुझे ऐसे लगा कि यही है जो मैं करना चाहती हूँ. दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू. दिस इज़ वेयर माय सोल फील्स हैप्पी. आई हैव बेटर स्लीप. I started, my medicine started to decrease. I used to wake up early, getting more responsible for my daily chores, participating with my child. So everything started, I started socializing, meeting people. तो मुझे लगा कि वो एक चीज़ है जो कि बहुत ही सपोर्टिव थी मेरे लिए. और within a span of like 2.5 months, I decided to do my teacher training program. राइट. सो योगा, इसके पहले आपने कभी योगा किया था? मैंने इसके पहले कभी योगा नहीं किया था. सुना था, देखा था, हम्म. बट किया कभी नहीं था. राइट. तो मतलब वो जो एक ट्रांजिशन था, डिड यू फील लाइक कि दिस इज बिकॉज आपने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे करना क्या है, तो वो अकम्प्लिशमेंट और और सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आई? नहीं, तब भी नहीं आई. सेटिस्फैक्शन मिली अपनी जर्नी के लिए, कि अपनी जर्नी, what I was going through and how yoga helped me come out of it was just amazing. और मैं अगर आपको बताऊंगी तो आप हंसोगे कि मैं एक डेढ़ घंटे की क्लास में मैं 1.5 घंटा रोई भी हूँ, बिकॉज आई वॉज हीलिंग फ्रॉम इनसाइड. I was breathing. I was, trying to release a lot of things that happen in my life. पर मुझे लगता है कि उस जर्नी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया. और सबसे ऊपर आई स्टार्टेड टू, आई रिमेन बैलेंस, अनशेकन. मुझे लगा वो फीलिंग मेरे अंदर आ रही जब मैं अपनी स्ट्रेंथ गेन कर रही हूँ वापस भी नहीं. इट वाज अ टोटल ट्रांसफॉर्मेशन. तो आई वाज गेटिंग मोर स्ट्रॉन्गर देन व्हाट आई वाज. करेक्ट. So that's it started, you started healing with yoga every day. Yes, absolutely. And then you went into doing the teachers training program. Then I went for my teachers training program, and मुझे ऐसे साल याद नहीं रहते, और ऐसे ही मैं थोड़े नामों के लिए भी कमज़ोर रहती हूँ. आई फॉरगेट नेम्स वेरी इजीली. तो वो मुझे याद है मार्च में मैं करके आई थी, एंड आई वाज सो एक्साइटेड अबाउट इट. तो मैं शिवानंदा योगा वेदांता सेंटर जो द्वारका है वहाँ गई, मिठाई लेकर गई, बोला मैं टीटीसी होकर आई हूँ, विद एन एक्सपेक्टेशन दैट मैं टीटीसी कर आई हूँ और दे विल गिव मी टीचिंग नाउ. बट देयर वाज नो टीचिंग. आई वाज लाइक डिसअपॉइंटेड कि मेरे को टीचिंग क्यों नहीं दे रहे अब ये, मैं तो टीचर बन गई. तो फिर भी वो मैं वहाँ रोज जा रही हूँ, सुबह शाम प्रैक्टिस कर रही हूँ, एंड द जर्नी स्टिल कंटिन्यूज. आई वाज लविंग व्हाट आई वाज डूइंग, बट ऑन द अदर हैंड आई हैड दिस अर्ज टू टीच. मुझे टीचिंग करनी है. सो वन फाइन डे, संडे मॉर्निंग, आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम द सेंटर कि आप 10 बजे वाली क्लास में आओगे असिस्टेंट्स के लिए. मैंने बोला हाँ जी बिल्कुल आऊंगी. आई वाज सुपर एक्साइटेड. And I just want to tell about that slot, 10 a.m. slot Sunday morning. It is just amazing. मतलब खूब रश रहता है और बहुत बड़ा हॉल है जहाँ पे सब एक साथ योगा करते हैं. तो जो जो हमारे टीचर थे वहाँ पे, सीनियर टीचर थे मोहन जी, उन्होंने बोला व्हेन आई सैट विद हिम फॉर द क्लास, तो उन्होंने बोला मुझे ऐसे हल्का सा टर्न करके, पार्वती जी यू आर गोइंग टू टेक द क्लास टुडे. So I was like amazed. It was a very mixed feeling for me because डर भी था और करना भी चाह रही थी. वहां से फर्स्ट जर्नी शुरू हुई, और बड़ी सारी चीजें छोटी मोटी रहती हैं, जैसे आपने अनुलोमा विलोमा कराना है, राइट लेफ्ट का ध्यान करना है, ब्रीदिंग कितनी करानी है, पंप्स, एंड आई हैड नो आइडिया. प्रैक्टिस आप अलग करते हो, आप टीचिंग अलग करते हो, but it just went so well. And it gave me so much confidence, and I was so much grateful for that first class. Nice. So you decided to take this as professionally.
नॉट येट। तब भी दिमाग में नहीं ये आया कि प्रोफेशनली ले लेंगे या इसको आगे कैसे कंटिन्यू करना है। स्टिल आई वाज वर्किंग विद द हाई कमीशन एज एन इंटरप्रेटर, जो मैं फ्रीलांस कर रही थी वो भी मैं कंटिन्यू कर रही थी और साथ साथ यहाँ प्रैक्टिस कर रही थी। देन फाइनली वी वर 27 वॉलंटियर टीचर्स देयर, और जहाँ पे मुझे सिलेक्ट किया गया फॉर प्रीनेटल योगा, आई स्टिल हैव दैट क्वेश्चन इन माय माइंड एंड आई कीप आस्किंग सर, विजय सर हैं हमारे सेंटर हेड, कि सर आपने मुझे क्यों मौका दिया? सो ही स्माइल्स एंड ही वॉक्स अवे। सो आई वाज गिवन दिस चांस एंड बहुत सारी चीजें थी, बिकॉज इट इज सच एन इम्पॉर्टेंट टाइम इन अ वुमेन्स लाइफ टू बिकम अ मदर। और आप क्या करा रहे हैं, कितना करा रहे हैं, क्या इंटेंसिटी रहेगी, रिजल्ट भी पूरा चाहिए, प्रिकॉशंस भी चाहिए, प्रोटेक्शन भी चाहिए, but you still have to continue. So it was just amazing. So my TTC guru, Nirmala ji, she helped me jot the asana sequence with me. Then I started to teach. It was very nice. There were 2 people, there were 8 people, and then sometimes there were no people. So I was just sitting there. तो जब मैं बैठी रहती थी तो सर कहते थे आ जाइए नीचे, आप अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए। और प्रैक्टिस करते करते कोई 2 लोग आ गए तो सर बोलते थे अब ऊपर जाइए, आप अपनी टीचिंग कीजिए। तो मिक्स था वो, बड़ा मजा आता था मुझे। सैटरडे संडेज आई यूज्ड टू टेक दोस क्लासेस एंड इट वाज वंडरफुल। Right. So when was it? Was there a specific point when you decided to become a full-time teacher? ओके, सो ये कब हुआ कि 2019 में जब कोविड आया तो सब शट डाउन हो गया, और आई वाज टेकिंग रेगुलर योगा क्लास फॉर अ कपल ऑफ फ्रेंड्स एंड माय कजिन्स, and then I got this offer. So I think a lot of people know about Ritu Rathi or Mrs. Flying Beast. So she got pregnant for the second time, and I was in the US with my parents. I think in March 2000, पता नहीं, I don't remember the year, but हाँ. So she contacted me and she said कि मैम मैं pregnant हूँ, आप मुझे योगा कराओगे? एंड आई वाज लाइक हाँ, क्योंकि मैं तो उस टाइम कोविड है, सिर्फ एक क्लास चल रही है ऑनलाइन, वो भी कजन्स की, कुछ कर नहीं रहे हैं। तो मैंने बोला हाँ जी बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। सो देन आई स्टार्टेड एंड इट वाज हर, एंड देन वन ऑफ हर फ्रेंड्स हु इज मानसी पायट, शी रन्स अ यूट्यूब चैनल मॉमकॉम इंडिया, और एक मेरी और फ्रेंड थी हाई कमीशन से, शी ऑल्सो गॉट प्रेग्नेंट। सो आई स्टार्टेड विद दीज 3 women. It was nice to start, and then Ritu Rathi was very kind enough. So she said मैम मैं आपको इंस्टाग्राम पे प्रमोट करना चाहती हूँ, एंड देन she helped me a lot. They were like, she has a lot of followers. वहां से फिर Right. लोगों ने कांटेक्ट करना शुरू किया, क्लासेस फॉर्मल हुई, सर से बात करी कि मैं स्टार्ट कर सकती हूँ, हाँ जी कर सकते हैं। तो वहां से ये सब स्टार्ट किया फिर। So एक बार थोड़ा पीछे जाते हैं, ठीक है? अ, आपने जब शिवानंद में करना शुरू किया तो हाउ इट द जर्नी वेंट इनटू, मतलब आप वहाँ आप जॉब कर रहे थे फुल टाइम और आप वीकेंड्स में वहाँ करा रहे थे क्लासेस, हाँ जी, एंड देन हाउ इट ऑल वेंट थ्रू, सो फुल टाइम कैसे स्विच हुआ इनटू फुल योगा? टाइम स्विच हुआ ये जब कोविड आया। अच्छा, कोविड के पहले इट वाज स्टिल अ पार्ट या टाइम पार्ट टाइम थिंग, अपॉर्चुनिटी। या ओके, बट आपने मतलब अब ये करियर जो है करना है एज अ योगा, ये आपने कोविड में डिसाइड किया? कोविड में डिसाइड हुआ ये। ओके, हम्म। बट उसके पहले क्या प्री रिक्विजिट होती है इफ समबडी वांट्स टू गेट इनटू दिस? So if I talk personally, somebody has to be well versed with yoga first. Like you should be at least 200 hours trained in yoga, and then you can do your specialization in prenatal. तो बहुत ही कम स्कूल्स हैं, और फिलहाल तो बहुत कुछ चल रहा है प्रीनेटल को लेके कि आप 85 आवर्स में प्रीनेटल टीचर बन सकते हैं 100 आवर्स में। ओके। बट मेरे हिसाब से इट इज नॉट सफिशिएंट इनफ, एंड आई थिंक दैट there is a lot to learn. Even in my case, मुझे लगता है अभी भी I am still learning. There is still so much to learn for prenatal, for birthing. There is like, we all are different. Our pregnancies are different. Our bodies are different. Absolutely. So the journey is also different. It cannot be, it cannot be generalized. तो इसके लिए I did an 120 hours course in prenatal and postnatal. And then I also completed my 50 hours Garbha Sanskar course. Meanwhile, I was teaching full time. और बहुत सारी बुक्स पढ़ी, और बहुत सारी जो मेरी
जो टीचर हैं उनसे डिस्कस की, स्पेसिफिक केसेस लिए कि क्या हो सकता है, और या दैट्स इट। सो अगर हम प्रीनेटल पोस्ट योगा की बात करें, पहले आई विल टॉक स्पेसिफिकली ऑन प्रीनेटल योगा। सो अगर जैसे मैंने तो नहीं किया है और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नहीं किया मैंने होगा। भी नहीं किया। हाँ, हाँ, बट अगर हमें किसी को बताना है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डूइंग प्रीनेटल योगा, समबडी हु इज नेवर डन योगा, तो क्या हम उनको बता सकते हैं? तो सबसे पहले तो वंस यू गेट द न्यूज़ इट इज़ ओवरवेलमिंग कि यू आर गोइंग टू बी अ मदर। द फर्स्ट ट्राइमेस्टर आई ऑलवेज एडवाइज दैट यू शुड टेक मोर रेस्ट because there are so many changes happening in the body, and there is sometimes people, they have vomiting, they have nausea, they have different symptoms again. तो मुझे लगता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर फिजियोलॉजिकली भी, बिकॉज द प्लेसेंटा हैज टू सेटल डाउन, द सेल द हैज टू स्टार्ट टू ग्रो, टू मल्टीप्लाई, एंड आपको सस्टेन करना है उसको, प्रेगनेंसी को। तो उसके लिए अगर आप बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट में बिलीव करेंगे या बहुत ही हार्ड कोर मूवमेंट करते हैं, सो इट इज़ डिफिकल्ट फॉर द एग टू सस्टेन इटसेल्फ। सो यू हैव टू वेट फॉर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। सेकेंड ट्राइमेस्टर, आप 12 हफ्ते हो गए, आपका एक स्कैन हो गया, तो वो पीरियड ऐसा है जब आपकी बॉडी खुद से खुद, आपको भूख लगेगी, खाना आप अच्छे से खाएंगे, आपको खाना डाइजेस्ट होगा, नौसिया कम होना शुरू हो जाएगा। सो इट इज़ ऑल अबाउट बिल्डिंग स्ट्रेंथ। तो जो लोग सेकेंड ट्राइमेस्टर में आते हैं उनको आके लगता है कि अरे यही प्रेगनेंसी थी, तो दे फील मोर कॉन्फिडेंट, उनको लगता है हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अरे मैं तो एक्टिव ही हूँ, मैं तो ऑफिस भी जा रही हूँ। कई लोग बोलते हैं मैम हम घर का काम कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, वी आर गेटिंग सपोर्ट। बट अगेन आई वांट टू I want to explain that that is not enough. You are just doing your daily chores, but you are not helping your body. Helping your body, अगर आप ऑक्सीजनेशन ही नहीं कर रहे तो आपकी बॉडी क्या ले रही है? आपका बच्चा आपके लंग्स के थ्रू ब्रीथ कर रहा है। अगर Correct. आप खुद ही आउट ऑफ ब्रेथ हैं, यू गेटिंग टायर्ड, और योर वेट इज इंक्रीजिंग, बहुत ज्यादा वेट इंक्रीज हो रहा है, या फिर वेट इंक्रीज ही नहीं हो रहा, तो दीज आर सिग्नल्स दैट योर बॉडी नीड्स समथिंग मोर। राइट। आपने बहुत तला हुआ खा लिया, आपको मालूम नहीं आपने क्या डाइट खानी है। बहुत सारे केसेस मेरे पास अभी ऐसे भी हैं जो कि व्हेन दे मूव टुवर्ड्स द थर्ड ट्राइमेस्टर देन देयर डॉक्टर्स टेल, अरे कि आपने तो प्रोटीन ही नहीं खाया, आपको प्रोटीन पाउडर पे आना पड़ेगा। देन वेरी कॉमन थिंग इज गेस्टेशनल डायबिटीज नाउडेज। सो देयर इज अ टेस्ट, एंड गॉड फॉरबिडन अगर आप उस ट्रैप में आ गए, देन थिंग्स एकदम दूसरी साइड पे चल पड़ती हैं। I very well know. Yes. I've been through it, so I know. So yeah, so preterm deliveries, they will give you a diet to follow. You have to monitor. So there are a lot of things that come with GD. So उसको avoid करना है आपने। जब तक आप अपनी बॉडी में मूवमेंट, आप ब्रीदिंग करते हैं, माइंडफुल ब्रीदिंग, लाइक नॉर्मल ब्रीदिंग भी आपकी बॉडी में इतना इम्पैक्ट लाती है। इट वर्क्स डायरेक्टली ऑन योर पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, और जब वो वहां काम करती है, यू आर लाइक मोर रिलैक्स्ड, काम, एंड you know what you're doing, being mindful of your body. Right. So how specifically, so apart from keeping you active, apart from the breathing exercises, how prenatal yoga supports the overall growth of the baby and the process of birthing? So आप अगर अपनी बॉडी को जो चाहिए वो दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आप एक ऑटो मोड में आ जाते हैं जब सब कुछ अपने आप हो रहा है। जब हम उसके अगेंस्ट जाते हैं, लाइक गोइंग अगेंस्ट द नेचर, वी सी डिजास्टर्स, व्हेन वी कट ट्रीज, व्हेन देयर आर, सो वी सी दैट इम्पैक्ट। सो ऐसे ही आपकी प्रेगनेंसी जर्नी है, आप उसको जितना नॉर्मल रखेंगे, सात्विक खाना खाएंगे। आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल है बहुत ही अनहेल्दी है, सो women usually smoke, they drink, so आपको कहीं ना कहीं वो सब क्विट करना है, आपको सात्विक खाने की तरफ आना पड़ेगा। आप नॉन वेज अगर लेते हैं, so it is good if you take it, it is welcoming because it has lot of protein, but again there has to be a balance. Like Right. when I see diet charts for many of the girls, they are like हम शाम को 4 बजे नारियल पानी पीते हैं, हम क्यों पियेंगे 4 बजे नारियल पानी? It's supposed to be the first thing in the morning. देन द नट्स, कितना नट खाना है, कितना खाना है, पोर्शन साइज क्या होना चाहिए खाने का, अगर मैंने आज रोटी ज्यादा खा ली, सब्जी कम खाई, सो देयर हैज टू बी अ बैलेंस ऑफ एवरीथिंग फॉर दिस जर्नी। आप कुछ भी ज्यादा नहीं कर सकते, कुछ भी कम नहीं कर सकते।
तो बहुत ही बैलेंस है और it impacts your mood, it gives you better sleep, you keep active. I think most of the women are working nowadays, so they can continue with their jobs. It feels nice, like somebody who's a magistrate and says कि मैम मैं 37th वीक में जाके अपनी maternity leave अप्लाई करूंगी. It gives you more confidence कि वो लोग इतना अपने बारे में इतने कॉन्शियस हैं और they are so strong to carry on that journey in that period. That also helps them get that Yeah. extra energy. Absolutely. Mm. Absolutely. Not them, it is other people as well. Right. पहले हाँ सॉरी नहीं प्लीज. पहले बोला जाता था प्रेग्नेंट हैं आप घर में बैठिए आप थक के बैठिए आपको बाहर नहीं जाना पर अब वो सब इट इज लाइक आउटडेटेड आप व्हाई नॉट इफ यू आर प्रेग्नेंट आपको कोई बीमारी तो नहीं हुई ना इट्स जस्ट अ जर्नी करेक्ट. आप जाइए बाहर आप खाइए बाहर आप घूमिए बाहर बट एवरीथिंग हैज टू बी इन अ लिमिट एंड विद प्रिकॉशंस राइट. सो आज के डेट में आई सी लॉट ऑफ पीपल टॉकिंग अबाउट प्रीनेटल योगा. इंस्टाग्राम खोले तो बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं आपको, यूट्यूब पे भी बहुत कुछ मिल जाता है. बट डू यू फील देयर इज स्टिल इनहिबिशन इन पीपल in accepting to do that and go through the journey of prenatal yoga and birthing? यस यस इंडिया में तो बहुत ज्यादा है अभी भी Mm-hmm. बहुत ज्यादा है सो आई स्टिल रिमेम्बर वन ऑफ माई स्टूडेंट्स एंड ऑनलाइन क्लास चल रही है एंड हर मदर पीप्स इन एंड उसकी मदर ने मुझे डांटा और बोला कि आपको मालूम है आप क्या करा रहे हो मेरी बेटी को उल्टा सीधा लटका रहे हो आप ये करा रहे हो ऐसे करा रहे हो इज इट सेफ आपको मालूम है आई नो वॉट आई एम डूइंग आई हैव माई एक्सपर्टीज इन इट बट आंटी अपनी बेटी की तरफ से शी इज स्कैर्ड तो मैंने बोला हाँ जी आंटी सब बढ़िया है एंड देन हर डॉटर सेंड हर आउट एंड आफ्टर अ कपल ऑफ वीक्स हर ब्रदर वाज सपोज्ड टू गेट मैरिड जब उसकी शादी हुई तो इट वाज हर 9th मंथ रनिंग वो बोलती मैम मैंने सारा काम किया अच्छे से रन किया पूरा आई रन द होल शो देन इट वाज अ नॉर्मल डिलीवरी सब कुछ बढ़िया हुआ और मेरी मॉम हॉस्पिटल में खड़े होकर सबको बोल रही है इतना आसान इसलिए हुआ क्योंकि ये प्रीनेटल योगा करती थी तो इसलिए हाँ हम लोगों को आई थिंक ऊपर ज्यादा समझाना पड़ेगा कि अपने पेरेंट्स को इन लॉज को है ना दैट इट इज मच नीडेड अराउंड दिस टाइम. Is there a phase like कि ये वाला phase है जिसमें आपने prenatal yoga करना है, birthing classes ये वाले phase हाँ होते? और definitely I would like you to explain a little about birthing classes. Prenatal और birthing में difference क्या है? So, prenatal yoga, we can start post the 12th week and it continues till you touch your third trimester. Right. So, every doctor, they usually have a scan between 28 and 32 weeks. जिसमें हमें बच्चे के बारे में पता चलता है उसकी पोजीशन उसका वेट और फ्लूइड कितना है बॉडी में और भी पैरामीटर्स रहते हैं तो जब हमें ये नॉलेज मिल जाती है देन वी स्टार्ट द बर्थिंग जर्नी. तो हम वहां पे हमारा काम क्या है अब सर्विक्स सबसे इम्पोर्टेंट है सर्विक्स डायलेशन इट डज नॉट हैपन इन डेज नॉट इन आवर्स. सो सर्विक्स डायलेशन है आपको ई फेस कराना है उसको आपको बच्चे को नीचे ड्रॉप कराना है जिसको हम लाइटनिंग बोलते हैं. सो मदर को तो प्रेशर आ रहा है पेल्विस पे मदर को लगता है वो दिस लॉट ऑफ प्रेशर बिकॉज शी इज यू नो पीइंग मोर फ्रीक्वेंटली नाउ बट अगेन देयर इज सम डिफरेंस. So the pressure, the cervix length will shorten and that's how, you know, the pressure will build up and that's how the cervix will efface and the baby will come out. So पूरा process है वो. तो उसके लिए जो हमारी एक्सरसाइजेज हैं वो एकदम प्रीनेटल योगा से अलग है. बट जब हम क्लास लेते हैं तो हम सबकी एक साथ लेते हैं. कुछ कंटेंट हमारा कॉमन रहता है सबका. जब वो वहां तक पहुंच जाती हैं ये वाली मदर्स हु आर मोर देन 32 वीक्स प्रेग्नेंट तो हम उनको बताते हैं उनको डेमोन्स्ट्रेट करके बोलते हैं अब आप ये करेंगे और जो रेगुलर क्लास है वो दूसरी चलती है साथ साथ. Right. So मतलब 32 weeks के बाद mostly it's the prenatal plus the birthing. Plus the birthing, yes. तो उसके पहले it's the prenatal. Yes, it is prenatal. Right. So अगर हम जैसे बात कर रहे थे prenatal yoga की और like you said कि the mother came in and she was worried because obviously ये बहुत sensitive phase होता है. So how do you ensure to take care of everything in an online class? Okay, so सबसे पहले है कि our batch sizes are very small. I do not, so
बैच साइज स्मॉल रहता है एंड यू हैव टू इंडिविजुअली फोकस. Also, it is me and there is one more assistant teacher so that we both can keep an eye on each and every one. जहाँ पर भी हमें लगता है कि you are going out of the flow, we will stop you there. तब तक हम आपको करेक्शन नहीं करेंगे, आपको सिर्फ बोलेंगे कि आप रुक जाइए. जब सबका वो हो जाता है, क्योंकि somebody who's in a 34th week practicing सूर्य नमस्कार will not stop. They are already in the flow. और जब ये यहाँ तक पहुंचते हैं, इनके पास भयंकर एनर्जी रहती है, भयंकर. सो एक अलग रिदम चलता है उनका जिसको आप रोक ही नहीं पाते. तो इससे अच्छा है कि जो कम वीक्स वाले आप उनको रोकिए, पहले उनको कंप्लीट करने दीजिए जो कर रहे हैं प्रैक्टिस, और इनको बाद में एक्सप्लेन करके फिर से कंटिन्यू कराइए. Right. सो यू कीप अ चेक ऑन ईच एंड एवरी वन. Right. So, apart from small batches, what is it that makes yoga with Parvati different? Okay, so the class is designed in a very beautiful way. So we do a lot of mantra chanting, and then there is this proximity that there is no wall, there is no barrier. You can talk, you can speak about whatever you want. If you have anything like regular checkups, डॉक्टर ने क्या बताया, हम कहाँ पर हैं, हमें ये कराना है कि नहीं कराना है, तो हम सब कुछ बात वहाँ करते हैं. So it is not just yoga. So we will discuss each and every case. So somebody who's in a 37th week and discussing with me about her recent doctor visit is also being heard by somebody who's in the 14th week. जो 14th week में उसको भी पता है कि वो भी 37th में तो आएगी उसकी जर्नी में. So you get beforehand information, which is sometimes it is very good, sometimes it is not good. So again it depends from person to person. बट आपको बिफोरहैंड आपको मालूम चल रहा है कि अच्छा इस जर्नी का ये पार्ट है. लोग क्या सोचते हैं कि प्रेगनेंसी इज समथिंग दैट स्टॉप्स यू फ्रॉम डूइंग सो मेनी थिंग्स, विच इज नॉट द ट्रूथ. इट डज नॉट स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग डूइंग यू आर अलाउड टू डू एवरीथिंग. बट ये है कि आपको ध्यान करना है. यू हैव टू बी अलर्ट. और आप माइंडफुल कब होगे? जब आपको मालूम होगा कि आप क्या कर रहे हो, आप ब्रीदिंग कर रहे हो. जो प्रैक्टिस करते हैं लोग, उनका ब्रीदिंग पैटर्न ही चेंज हो जाता है, बिकॉज दिस इज व्हाट दे विल रिक्वायर व्हेन दे गो इनटू लेबर, दिस ब्रीदिंग प्रैक्टिस. सो वी डू सो मच ऑफ ब्रीदिंग कि वो उनका पार्ट ऑफ डेली ब्रीदिंग प्रैक्टिस बन जाता है. Right. So when they go into labor, it gets easier for them. कैसे वो लिखते हैं 2 pushes, 3 pushes, the baby is out. How does it happen? It is not a miracle. They have worked hard for it. So body आपकी इतनी easy change नहीं करती. आपका mind उससे ऊपर बिल्कुल कोई change accept नहीं करता. Be it for anything. So you have to actually put lot of efforts to see that result. बिना efforts डाले आपको result नहीं मिल सकते. I was going through some of the testimonials and I came across one where she said that it just started, we went to the hospital and the baby was out. So hardly about an hour and everything was... Yeah, I have cases wherein 20 minutes was the labor. 20 minutes mein the baby was out. Right. Yeah. Tell us something, some very close to your heart stories. Okay, so this story, okay, so this studies, or the experience is Agrima's. Agrima, she's from Canada, and Agrima, एक दिन Saturday सुबह की class थी. I was teaching, and she was the only student in the class. So we did the class, and but जैसे with all my experience, मुझे लगता है कि मतलब I can actually tell them कि आप बस you are very close to labor, या आप कितनी क्लास और कर सकते हो. तो मुझे ऐसे लगा that she's very close. And after she finished off her class, वो कहती मैम मुझे contractions इतने intense हुए that within 3.5 hours her son was born. Similarly, there is another girl, Sharan, who attended the class. हम क्लास के बाद चिट चैट करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, डिस्कशंस होती हैं, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, कहाँ मेडिकली हमें क्या असिस्टेंस चाहिए, डॉक्टर के पास जाना है, विजिट क्या है, स्कैन में क्या आया. तो शरण ने पूरी क्लास करी और बताई कि मैम फुल टाइम हो रहा है एंड ये ऑल दिस whatever she wanted to share. And then it was about 9:05, 9:10 a.m. when we ended the class. 11:25 I receive a message कि शरण की बेटी हुई है. तो मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग भी था कि अभी तो वो क्लास में थी, अभी कैसे हो गया ये.
then I spoke with her husband and she was like, मैम क्लास खत्म करी तो वो एकदम रेडी थी हॉस्पिटल जाने के लिए. She was ready to go to the hospital. और बोलते हैं हॉस्पिटल वाज नॉट रेडी टू टेक हर. इतना ऐसा था, मतलब इतनी इमरजेंसी थी. एंड व्हेन वी टुक हर टू द लेबर रूम, द बेबीज हेड वाज ऑलरेडी देयर. इट वाज सो क्विक. 20 मिनट्स के अंदर अंदर शी डिलीवर्ड. Tell us some complicated stories that you've helped to. Complications, okay, so अलग अलग सिनेरियोज रहते हैं. So there is another incident from Sadhna. Sadhna joined my postnatal class. She did not do the prenatal for the first time. And when she did her postnatal, she was like totally shattered because her daughter was born in 28th week. She was kept in the NICU for very long. And it takes a toll for a mother. तो बच्चा आपके पास होकर भी नहीं है, आप हॉस्पिटल जा रहे हो, आप घर पे रह रहे हो. So yes, so then she healed completely. She was doing her postnatal and she got pregnant for the next time. तो साधना ने बोला कि मैम, मेरे हस्बैंड ने बोला है कि चुपचाप साधना अपने मैम के पास चले जाना है, कुछ नहीं करना. So there was some defect which was being projected for the second baby as well. So the doctors, they were doing some tests for her, regular checkups, कुछ DNA का था. तो बोला कि मैम, मैंने बोला we will go week by week. We will not focus on 37, we'll just go week by week. चलो. तो thankfully she delivered in her 34th or 35th week था. तो हम और जर्नी कंटिन्यू कर पाए. तो साधना बोलती थी, मैम ये सब होता है बिकॉज शी डिड नॉट एक्सपीरियंस ऑल दिस अर्लियर. और उसका सी सेक्शन ही प्लान था ये वाला. बट अगेन द डॉक्टर सेड द बेबी had actually slided down a lot in her 35th week. So क्यों? क्योंकि वो नेचुरल वे में बच्चा तो उसी उसमें चल रहा है, उसको तो नहीं मालूम कि सी सेक्शन होगा कि क्या होगा. बच्चा रिसीव कर रहा है जो माँ कर रही है, वो रिसीव कर रहा था जो भी माँ प्रैक्टिस कर रही है, और वो नेचुरल वे में ही आगे चल रहा है. तो हम बोल रहे हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, बच्चे को तो नहीं मालूम क्या है. So I'm so thankful कि it was such a nice experience for her as well and even for me. So VBACs होते हैं. VBACs are very rare in India, but yes, if you speak to your doctor first, your body is ready. There are perineal massages that we continue with, so life gets easier with them. तो टिप्स हैं ये सब कि आप उसको कैसे आप उस जर्नी पे ज्यादा फोकस कर सकते हो. I was reading one of the feedbacks where she said that it was a planned C-section and then she started having a labor. Natural labor. Yeah. How does it feel when you get those messages from your learners? I feel so grateful. I feel so grateful. Yeah. And I feel so accomplished. So you mentioned about the postnatal. So we've discussed so much about prenatal. Yeah. Tell us about the postnatal. When is the right time to start? Okay. So postnatal journey prenatal से ज़्यादा difficult है. But हम लोग उसको accept नहीं कर पाते. हम लोगों को लगता है कि हमारा target है to give birth. That is not the truth. The real journey, begins when you have your baby in your hands. Then there is that consistent effort, है ना, जो breastfeeding है, lactation अपने आप में एक journey है. Correct. Or it is not easy. So you need a lot of support from your partner, from the family, from friends. तो मैं उनको बताती हूँ कि आपने काम distribute करना है. You have to delegate work. कि कौन आपका कितना help करेगा वहाँ पे. You have to manage things beforehand. Like even for small things, कि grocery है, आप नहीं जा पा रहे, आपके husband नहीं जा पा रहे, या आप दोनों ही हैं जो बच्चे का ध्यान कर रहे हैं, तो who will go for the grocery? या हमारे पास क्या backup plan है? तो उस सिचुएशन में एक तो मैं बोलती हूँ हमेशा have people around you when you want to deliver. Either your in-laws, your parents, your sisters, your bhabis, but somebody has to be there. It is very difficult to handle all by yourself. Then second is postnatal. आप इतना ज़्यादा बॉडी आपकी टोल पे है, उसके ऊपर से लैक्टेशन है, स्लीपलेसनेस है ना, और कितना ज़्यादा आप स्लीप डिप्राइव्ड हो for such a long time. और I remember one of my students, so I usually ask them कि आज आपको क्या अच्छा लगा, except postnatal students को, आज आपको क्या अच्छा लगा. So she said, मैम आज मैं नहाई और कोई आवाज़ नहीं आई कि जल्दी कर लो. So ऐसा लगा कि अचीवमेंट है कि मैं अपने
तरीके से और अपने टाइम फ्रेम के ड्यूरिंग आई कुड टेक अ शावर. So postnatal journey is that tough. You actually lose yourself completely in it. फिर उसको वापस लाना है तो क्या करना पड़ेगा? काम तो करना पड़ेगा उस पे वापस. Right. So when is the right time to start? I usually it is 3 months. सी सेक्शन के केस में आपके पहले के 3 महीने कैसे निकले उसके ऊपर डिपेंड करेगा. Correct. अगर तो आप स्लॉग करते रहे वो 3 महीने, आप सोच रहे हैं कि बस मुझे मैनेज करना है कैसे भी, तो आप नहीं कर पाएंगे आप. बट अगर आपको एम्पल सपोर्ट मिला हुआ है, देयर इज समबडी हु इज आल्सो हेल्पिंग यू in taking care of the baby while you are doing the practice, and you have healed like partially, your stitches have healed, you are taking your supplements, you are drinking ample water, your food is nice and warm and fresh, then your body starts to heal. So 3 months is the 3 months is the ideal time, but C-section के केस में it depends from case to case. right. But अगर किसी को बहुत ज्यादा पोस्टपार्टम डिप्रेशन की इशू है तो क्या कैन दे डू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एटसेट्रा? Absolutely. आपने सीख लिया, आप वो कभी भी कर सकते हैं. तो जब ये प्रीनेटल करते हैं तो मैं इनको बताती हूँ कि प्रीनेटल ब्रीदिंग और जो हम सूक्ष्म व्यायाम जो जेंटल एक्सरसाइजेस करते हैं वो ये पोस्टपार्टम के टाइम खुद से कर सकते हैं. It Right. makes around 20 minutes of sequence. So you mean to say that during your prenatal you also prepare them for the first 3 months? Absolutely, absolutely. Right. That's so amazing. Yeah. So हम postnatal की अगर बात करते हैं तो like जैसे postpartum depression आपने कहा था you were going through postpartum depression. So how real is postpartum depression and how this helps in postpartum depression? So a woman goes through a lot after the delivery. तो अब आपको पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक तो आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस करके हो रहा है, और दूसरा है द सोसाइटल नॉर्म्स. देयर इज सो मच प्रेशर फॉर ईच एंड एवरीथिंग. आज बच्चे को नहलाना नहीं है, बच्चे को ऐसे रखना है, तुम ऐसे क्यों बैठी, तुमने ये क्यों नहीं पहना, सर कवर क्यों नहीं है, मोजे नहीं पहने. तो देयर इज सो मच दैट कम्स फ्रॉम नॉट फ्रॉम द फैमिली बट फ्रॉम अदर पीपल एज वेल. इट गेट्स डिफिकल्ट टू टेक इट. So sometimes mostly, not sometimes, mostly these women I feel that they are so much unhappy with the current situation. क्यों? क्योंकि एक तो बच्चा पेट में है ना, तो आप रिलीव्ड हो, लोगों को लगता है प्रेग्नेंट हूं मैं, बट आपका बच्चा पेट में है, आपके थ्रू खाना खा रहा है, आपके थ्रू वो उसको रिलीज कर रहा है, आपके थ्रू वो ब्रीथ कर रहा है. So you are in charge of that baby. But when the baby comes out, he becomes or she becomes you are in charge. आपकी पूरी लाइफ उस बच्चे के सराउंड घूमती है फॉर एवरी मोमेंट. सो यहाँ पर आपको डिप्रेशन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. ऑल्सो it has been scientifically proven that some degree of depression is there in each and every mom. We need ample support from the family for this. ये मेरी रिक्वेस्ट है पार्टनर्स को, क्योंकि पार्टनर्स इनकरेज करते हैं प्रीनेटल के टाइम, हाँ करो, बट व्हाई नॉट पोस्टनेटल के टाइम. बाकी की जिंदगी भी तो है. यू कैन नॉट लेट योर लाइफ बी इन द सेम सिनेरियो फॉरएवर. सो यू हैव टू एनकरेज देम टू प्रैक्टिस, टू कम आउट ऑफ दैट. और उसके अलावा आपका पोस्चर इंप्रूव हो रहा है, आपका मूड सही हो रहा है, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक हो रही है, हार्मोन्स बैलेंस हो रहे हैं, बेटर स्लीप है. देयर इज सो मच दैट इज हैपनिंग इनसाइड. यू हैव मोर स्ट्रेंथ. बच्चा बढ़ रहा है, लोग बच्चा उठा नहीं पाते, बच्चे का वेट बढ़ रहा है, मैं थक जाती हूँ, बच्चा उठा नहीं पा रही अपना बच्चा ही, क्योंकि देयर इज नो स्ट्रेंथ. इतना कॉमन है ये डायस्टेसिस रेक्टी, सेपरेशन ऑफ द मसल. पीपल डोंट केयर. बाद में जब जाते हैं 3 साल 3.5 साल, देन दे वांट टू कम बैक एंड रिड्यूस इट. इट गेट्स टफर. ये वही हिसाब है कि अगर आपको कोई कुछ प्रॉब्लम है तो आपको दवाई उसी टाइम खानी पड़ेगी. अगर आप बोलोगे कि मैं 2 साल के बाद दवाई खाऊंगी आज की बीमारी की, तो वो तो भगवान ही बचाएंगे फिर आपको. करेक्ट. तो मैंने एक बहुत कॉमन वर्ड सुना जब मैं रिसर्च कर रही थी, पेल्विक फ्लोर. Oh yes. So the pelvic floor, it goes for a toss. Even if you are, smiling, laughing, there will be frequent urination because the pelvic floor is so weak. I have seen, like I have shown these girls pictures during their prenatal period when they do these pelvic floor exercises and postpartum.
ऑलमोस्ट जो प्रीनेटल कर रहे हैं उसके बाद भी जो उनकी स्ट्रेंथ है वो 1/3 या 1/4 ही रह जाती है। तो आप सोचिए जिसने जब कभी किया ही नहीं कुछ तो उसका पेल्विक फ्लोर कैसा होगा। राइट। आपको बहुत इंपॉर्टेंट है एंड नॉट जस्ट योर प्रेगनेंसी पोस्ट प्रेगनेंसी एज अ वुमेन as you know we want to make or maintain our reproductive system stronger, we need to do our pelvic floor and kegels. This is like compulsory for everyone. It is not age specific. Correct. We'll go back to birthing classes, Yeah. right? Because prenatal, postnatal तो मैं बहुत देख रही हूँ, but specifically birthing classes is not that कर्ब संस्कार, birthing classes are not something that everybody is talking about. So let us know a little about are these two the same thing or different things? Birthing is different. And birthing के लिए you're preparing your body physically and mentally for labor. जब आप लेबर में जाते हो फिजिकल स्ट्रेंथ एक जगह रहती है बट आपकी मेंटल स्ट्रेंथ है वहां पे जो काम करेगी. So I'll quote an example here. Sheetal went to a government hospital for her delivery because she knew someone there. And then she tells me कि यहाँ पर 7 लड़कियां हैं मेरे साथ मैम जो सिर्फ चीखे मार रही हैं और कुछ नहीं हो रहा. मैम मुझे डर लग रहा है. जबकि शीतल इज अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, शी इज बिन प्रैक्टिसिंग और बहुत ही बढ़िया किया सब. नाउ व्हाट इफ हर माइंड जस्ट शिफ्ट्स टू दैट साइड. सो पूरा स्टोरी एकदम टर्न हो जाएगा. मैंने उसको बोला शीतल आपने क्या किया मेरे साथ रह के 6 महीने आपने क्या सीखा, आपने कितना प्रैक्टिस किया. सो शी लाइक हाँ मैम मैंने किया बट अभी भी मुझे डर लग रहा है बिकॉज शी सीइंग अदर वुमेन डूइंग स्क्रीमिंग एंड डूइंग अदर स्टफ. मैंने बोला क्या आपको कुछ दिख रहा है. कहती मेरे साथ वाले रूम में सब कुछ इक्विपमेंट पड़ा हुआ है फॉर प्रैक्टिस. सो दे हैड these balls, birthing balls, they had these rods and stuff. मैंने बोला शीतल कान बंद करके आप उस रूम में चले जाओ और अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करो, जो आपको बताया ना आप सब करो. तो उसने बर्थिंग वाली सारी एक्सरसाइजेस वहां स्टार्ट करनी शुरू करी. थैंकफुली विद इन 4 hours और 5 hours शी वॉज एबल टू डिलीवर नॉर्मली. तो आप अगर देखो दिस अ वेरी थिन लाइन. व्हाट इफ एंड व्हाट इफ शी वाज नॉट, we could have not spoken. So I am readily available for these girls. I am 24/7 available for them if they are in labor. They want to talk anything, they want to know anything, discuss. I'm always available to them. How do you manage with the internet? I don't know. I myself don't know, but I am there for them. सो एक फेयर तो होता है, अननोन फेयर है. कितना भी आपको कोई बता ले Yeah. कि इट्स नॉट डिफिकल्ट, बट having gone through the situation, of course mine was both C-section, but there was a fear, एक अंडरस्टैंडिंग थी वाटर ब्रेक कैसे होता है, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है. हाँ. सो हाउ डू यू एजुकेट दिस टू द So there is learners? so much available on the net. इतना available है कि वो चाहिए ही नहीं है. I always tell them that with your practice, with your spiritual journey as well, with the mantra chanting that we do a very intense yoga nidra practice where we do affirmations, we connect with the baby, and it is so beautiful that sometimes मैं खुद सो जाती हूँ वहां पे. I'm also in that phase. So जब आप वो करते हो आप अपने माइंड को, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, आप वहां पर ये मैसेजेस भेज रहे हो. Every time you're practicing, you're sending that wave to the brain. Now, when the time comes for this actual execution, आपकी बॉडी को पता है मुझे क्या करना है. आपका ब्रेन ऑलरेडी अलाइंड है वहां पर, ठीक है. बट बिकॉज द माइंड इज ऑलवेज फ्लिकरिंग एंड इट ऑलवेज टेल्स अस द नेगेटिव पार्ट. माइंड हमें कभी सही नहीं बोलेगा, हमेशा नेगेटिव. तो अगर दिस इज जस्ट अ वेरी थिन लाइन, देयर इज अ शिफ्ट. मैं कर सकती हूँ, मेरी बॉडी को पता है, मेरा बच्चा सपोर्टिव है, मेरी बॉडी रेडी है, एंड दैट इज इट. यू आर देयर. इट इज दैट ब्यूटिफुल. क्योंकि एज अ वुमेन वी आर मेड लाइक दिस. वी आर मेड टू रिप्रोड्यूस. वी आर, आवर बॉडी अंडरस्टैंड्स मुझे क्या करना है. आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ब्रीथ करना है, आपकी बॉडी बाकी का काम कर देगी. सो हम जितनी ब्रीथिंग की बातें कर रहे हैं, आपने पहले भी बताया, इन जनरल मैं भी जितना योगा के बारे में पढ़ती हूँ, मैंने कभी योगा प्रैक्टिकली नहीं किया हुआ है. तो
people talk a lot about breathing exercises and how it calms the mind. It does. How? We can practice. Now? Yeah, sure. So you can just close your eyes, sit comfortably. Spine should be tall. Place one hand on the heart chakra, another on your belly. Close your eyes. And just take a deep breath through your nose, both the nostrils active. And when you exhale, engage your diaphragm, engage your abdomen, and start to exhale as slowly as possible. Inhale again, a long, deep breath, expansion of the chest, abdomen. And exhale, slow, gentle, and deep. Inhale again, expand. Feel as if you're flying. Exhale gently, coming back, releasing all the stuck emotions, releasing the fears. Again, inhale, expand, as if you're a bird and flying freely. Exhale gently, squeezing in the abdomen, chest, and letting go. Another one, inhale again, expand. Exhale, gently start to release, pull your belly in and relax. Now gently release your hands. You can rub your hands. Place both your hands on your eyes, on your face, on your body. Feels good. Yes, thank you. It is wonderful. It is Actually wonderful. feels good. Karna padega. So when I was going through your Instagram page, I see a lot of your pictures with your learners, their babies, and then a lot of time you talk about community building. So you, in fact, right now also said that in your session you just chit chat. Yeah. And so tell us, what is that whole ideology behind तो मुझे लगता है कि एज अ वुमेन आई फील, मुझे ऐसे लगता है कि एक वुमेन आपको स्पेशली ड्यूरिंग दैट फेज अ वुमेन कैन अंडरस्टैंड यू मोर. सो जैसे मैंने पहले बोला, somebody who's in her 18th week, somebody who's in a 36th week, like I love the the communication that they have. कौन सा पिलो खरीदना है, प्रेगनेंसी पिलो, कौन सा प्रोटीन पीना है. सो देर इज अ कम्युनिटी विच आंसर्स दोस क्वेश्चंस. ठीक है, तो वो जब हम कम्युनिटी बिल्डअप करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट मिलता है. जब क्लास हम नया बैच स्टार्ट करते हैं, तो somebody who's in a 13th 14th week is still skeptical to practice, and when they see somebody who's in a 38th 39th week, like वो बिंदास चल रहे हैं, तो आप encourage होते हो, आप motivate होते हो कि yes, it is safe and we can do it, and it is absolutely safe. हमने जो क्लास बनाई है, हमने ऐसे ही तीर नहीं छोड़े. बहुत रिसर्च के बाद हम यहाँ पर उतरे हैं जहाँ पर अब हम हैं. और मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी जर्नी, आई ऑलवेज टेल देम, जर्नल इट, राइट इट डाउन समवेयर, राइट गुड मेमोरीज, बिकॉज व्हेन योर किड्स ग्रो अप, लेट्स से 10-12 साल के बच्चे होंगे, इकट्ठे बैठ के पढ़ोगे, हंस हंस के पागल हो जाओगे. इतनी सुंदर जर्नी थी ये. तो मेक इट मोर मेमोरेबल. यू आर नॉट, आपको कोई बीमारी नहीं हुई है, आपने उस जो जर्नी में हो उसको और ब्यूटीफुल करना है, मेमोरेबल बनाना है उसको आपने. Today's Hustle Bustle Hamper is sponsored by INSEA, your ultimate destination for fashion accessories. Midas Touch Unisex Salon, premium choice for your hair and beauty. We evolve, ancient healing, modern living rooted in nature. 7 Spoons, home cooked delicacies with healthy twist. Nefertum, the god of perfume. Discover your journeys, boutique travel experiences. So, इसके साथ हम move करेंगे मेरे favorite part पे, which is rapid fire. Okay, sure. So, the first thing that comes to your mind with every question, right? Okay, Ready? ready. And it's rapid fire ke baad, definitely there is a hamper coming. Yay! So, what is your favorite yoga pose? Headstand, Shirsasana. Sirsasana. One thing you miss from corporate life? Nothing. Okay. A prenatal myth you hear too often? Is it safe? Anything about postnatal? Nothing. I need more encouragement there. Tea or coffee? Coffee. If not yoga, then what?
कुछ नहीं. The most unexpected place you have done yoga? Okay, so ये था Washington DC. I went with my sister for a 10K walk. और फिर मैंने वो पोटामिक रिवर के नीचे हेडस्टैंड किया था. Well, the best feedback a student ever gave you? They are also welcoming. They are just warm. They are just part of me. मैं कभी भी इनको differentiate कर ही नहीं पाती. One wellness ritual you swear by? Sleep on time and eat good food. So here's your hamper. Yay! Thank you. Wow, looks so nice. I hope you like it. Yes, it is so beautiful. Wow. Any parting message that you want to give to all the to-be moms and the new moms? So I truly believe that your body is your best friend. आप इसको सबसे ज़्यादा इसका ध्यान करो. Eat your food, eat your sleep, be taking care physically, mentally, emotionally. जहाँ ज़रूरत है वहाँ बात भी करो. जहाँ अच्छा खाना खाना है वो खाओ. पानी अच्छा पियो. अपने आप को खुश रखो. And move into a realm that is like more empowering for you. And you have to stay strong because आप अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल आप ही हो. Right. आपको उनकी गाड़ी उनके लिए एग्जाम्पल सेट करना है. तो जब तक आप स्ट्रांग नहीं होगे तब तक वो भी कमजोर रहेंगे अगर आप स्ट्रांग नहीं हो तो. एंड वी डोंट वांट द नेक्स्ट जनरेशन टू बी वीक और unhealthy. We want them to be strong, happy, well. So yeah.